हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आराधना फिर से आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल आराधना ट्यूटोरियल क्लासेस पे और वेलकम करती हूं आप सबका। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्टिलेशन का ही पार्ट बताया था, मैकॅप-थिल मेथड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मैकॅप-थिल मेथड का एक एग्जाम्पल, जिससे एग्जाम्पल को देख के आपको मैकॅप-थिल मेथड जो है वो और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अगर हम उसे अच्छे से पढ़ते हैं तो हम आगे उसे अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि हमें पता है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्या होता है कई बार एक्साइटमेंट में हम एक दो वैल्यूज़ देखते हैं और करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर बीच में अटक जाते हैं, फिर इससे हमारा एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन हमें कोई भी एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, हमें अपना टाइम जो है कम कंज्यूम करना है, जल्दी से जल्दी एक्यूरेट आंसर लेके आना है। यानी कि एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है और टाइम बहुत ज़रूरी है। स्पीड एंड एक्यूरेसी दो चीज़ें, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल है तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। A continuous fractionating column is to be designed for separating 10,000 kg per hour of a liquid mixture containing 40 mole% methanol and 60 mole% water. ठीक है, we have to know F, that is in kilomole per hour और in mole per hour। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 10,000 kg per hour दे रखा है, तो उसे मोल पर आर में या किलोमोल पर आर में चेंज करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं पता, बिकॉज इट इज़ द लिक्विड मिक्सचर ऑफ two components, methanol and water. So we have to calculate the average molecular weight of feed, and for that what we have to do, we have to do the summation of molecular weight of the component multiply by the mole fraction of that component. Means mole fraction of methanol multiply by molecular weight of methanol plus mole fraction of water multiply by molecular weight of water. So molecular weight of methanol is 32 and molecular weight of water is 18. So what will the average molecular weight of the feed? Average molecular weight of the feed will be 40 mole% methanol, right? So 0.4 multiply by 32 plus 0.6 multiply by 18. So when we will calculate it, then average molecular weight of feed will be calculated as 23.6, and after that we have to divide this molecular weight to the rate of feed, that is 10,000 kg per hour. So when we divide 23.6 to 10,000, then the molar flow rate of feed is 423.73 kilomole per hour. That means feed is 423.73 kilomole per hour. So for calculation by मैकॅप-थिल method, we should know feed and either distillate or bottoms. So feed we have calculated, now we have to calculate distillate or bottoms. So for that we have to write material balance equation. The first one is overall material balance equation and the second one is component balance equation. Okay, now the distillate that will be calculated will be 169.492 kilomole per hour when we will calculate the two equations. The one is overall material balance and the second one is component material balance. Then we will calculate the overhead product obtained, that is D, as 169.492 kilomole per hour, and such that we can calculate bottoms also, that is W. So now we have to calculate number of ideal plates, and first of all we have to draw the equilibrium diagram, and after that we have to draw the diagonal. Okay, उसके बाद we should know rectifying section operating line and Q line. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, in the question it is given itself that feed is at its bubble point, and when feed is at its bubble point that means the feed is saturated liquid. ओके, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फीड जो है वो अपने बबल पॉइंट पे है और फीड बबल पॉइंट पे है, इसका मतलब जो है कि फीड जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड है, और फीड जब सैचुरेटेड लिक्विड है देन Q इज इक्वल टू 1, एंड इफ Q इज इक्वल टू 1 देन द Q लाइन इज स्ट्रेट वर्टिकल. ओके, नाउ वी शुड नो रेक्टिफाइंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन, दैट इज रिटन हियर, and intercept is xt upon r plus 1. xg is given as 0.97 and r is given as 3, so intercept is calculated as 0.24. Now we will mark the point 0.24 on the y axis
and we will mark xd, that is 0.97 on the diagonal. x इज इक्वल टू 0.97, इसको हम मार्क कर देंगे डायगोनल पे, ठीक है। उसके बाद हम ये जो इंटरसेप्ट है, वी विल जॉइन द इंटरसेप्ट टू द एक्सडी पॉइंट ना, यानी कि हम जो इंटरसेप्ट है उसको जो हमने मार्क किया डायगोनल पे एक्सडी, वहाँ तक मार्क कर देंगे। उसके बाद हम एक्सएफ मार्क करेंगे, सॉरी जेडएफ मार्क्स करेंगे, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ फीट, दैट इज 0.4 को हम मार्क करेंगे डायगोनल पे, और फिर वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे क्योंकि q इज इक्वल टू 1 है। और यहाँ पे जो ये दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि रेक्टिफाइंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन एंड क्यू लाइन, उसको हम किससे मिला देंगे, एक्स डब्ल्यू से। एक्स डब्ल्यू जो कि हमने डायगोनल पे मार्क किया है क्या, 0.02, और उसको हम मिला देंगे इंटरसेक्शन पॉइंट से, ठीक है। और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते जाएंगे, 0.97 जहाँ पे एक्स डी मार्क किया है हमने सबसे पहले डायगोनल से, वहाँ से हम ब्लॉक बनाते जाएंगे और नीचे तक बनाते जाएंगे। अब ये जो ब्लॉक्स जितने हैं उतनी आपकी प्लेट्स हैं, यानी कि ऊपर से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स जो है वो आपकी 7 है। और फीट प्लेट कौन सी है आप देख सकते हैं, ऊपर से हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर का ब्लॉक ऐसा है या फिफ्थ नंबर की प्लेट ऐसी है जहाँ पे दोनों ही सेक्शन की लाइन है, स्ट्रिपिंग सेक्शन की लाइन और रेक्टिफाइंग सेक्शन लाइन, दोनों वहाँ पे मिल रहे हैं। तो फीट प्लेट जो है वो आपकी कौन सी है, फिफ्थ वन। तो जब भी आपको मैकॅप-थिल मेथड से सॉल्व करना है और नंबर ऑफ ट्रेज निकालनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द इक्विलिब्रियम डायग्राम एंड द डायगोनल। आफ्टर दैट वी हैव टू मार्क द 3 पॉइंट्स ऑन द डायगोनल, XT, ZF and XW. And after that we have to draw the rectifying section operating line. For that we have to calculate the intercept, and then we have to mark the intercept on the y-axis, and we have to join this intercept point to the XT point on the diagonal. After that we have to draw the Q line, and after that the point that is the intersection point between the Q line and the rectifying section line, we have to meet that point to the point XW on the diagonal, and then we have to draw the blocks in the common part of the 3 lines, and after that we have to count that. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम कर्व ड्रॉ करना है, उसके बाद हमें डायगोनल ड्रॉ करना है, और उसके बाद हमें XT, ZF और XW जो पॉइंट्स हैं मोल फ्रैक्शन, वो सब डायगोनल पे मार्क करने हैं। उसके बाद हमें रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन ड्रॉ करनी है, जिसके लिए हमें इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है, और इंटरसेप्ट कैलकुलेट करके वो हमें वाई एक्सिस पे मार्क कर देना है। उसको हमें XT पॉइंट जो डायगोनल पे है XT पॉइंट, उससे हमें ज्वाइन कर देना है। उसके बाद जो यहाँ पे ZF पॉइंट डायगोनल पे मिल रहा था, वहाँ से हमें Q लाइन खींच देनी है, Q लाइन ड्रॉ कर देनी है, और फिर इन दोनों का जो रेक्टिफाइंग सेक्शन लाइन और Q लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसे हमें XW पॉइंट जो है डायगोनल पे, उससे ज्वाइन कर देना है। अब ये आपका ड्रॉ हो चुका है प्लॉट। अब जो XT पॉइंट जो है डायगोनल पे, वहाँ से हमें ब्लॉक्स बनाने स्टार्ट करने हैं इन द कॉमन पार्ट बिटवीन द 3 लाइन्स, और कहाँ तक बनाने हैं, XW तक बनाने हैं। उसके बाद हमें ब्लॉक्स को काउंट कर लेना है, वो नंबर ऑफ प्लेट्स हो गई जो कि 7 है, जिसमें कि एक आपका रिबॉयलर भी एडेड है। और फीड प्लेट की लोकेशन अगर पूछिए तो वो लाइन है जिसपे दोनों लाइन, यानी कि रेक्टिफाइंग सेक्शन लाइन और ऑपरेटिंग स्ट्रिपिंग सेक्शन लाइन दोनों होती हैं, तो वो यहाँ पे 5th नंबर की प्लेट पे है। तो फीड प्लेट की लोकेशन यहाँ पे कौन सी है, 5th वन। तो ये था मैकॅप-थिल मेथड का एक एग्जाम्पल, और आई होप दैट आपको ये समझ में आया है अच्छे से। और आगे डिस्लेशन में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, तो इसके आगे नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी वीडियो आएगा, उसमें मेरे ख्याल से मैं बताऊंगी टोटल रिफ्लक्स रेशियो एंड मैक्सिमम रिफ्लक्स रेशियो, राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, एजियोट्रोप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, भी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो देखते हैं आगे कौन सा वीडियो होता है, और मैं इसी तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी कि ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए। और
इसमें क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता है। अगर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे तो कुछ समझ में आएगा, वरना मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है, सही लगता है, ख़राब लगता है, कैसा लगता है, आप क्या चाहते हो मुझसे। तो आप नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी लोगों को भी बोलिए शेयर करने को। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है मेरा चैनल तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे ही आपकी मर्ज़ी हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग टाइम टू माय चैनल। थैंक यू।